برکائی میرے بھائی، اس سلسلے میں عمیر سے بات کر چکا ہوں، یہ اس تجویز سے متفق ہے۔ کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے، پہلے سلافوں سے نمٹیں گے، اس کے بعد پولینڈ کی مہم کو سر کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب و کامران سرائے باتوں کو لوٹیں گے۔ خریم بن مخروم کے ان الفاظ سے برقائی بھی خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، اب تم دونوں بھائی جاؤ، تم دونوں کی بیویاں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم دونوں کو ویسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ برکائی کے کہنے پر خریم اور بشار اپنے خیمے میں، جبکہ عمیر بن نصر، نکسار اور تھمر اپنے یورت کی طرف چلے گئے تھے۔ اگلے روز خریم بن مخروم نے ایک لشکر کے ساتھ دریائے نیپر کے کنارے کیف شہر کی طرف کوچ کیا۔ لشکر میں عمیر بن نصر، تورائی خان، کشلی خان کے علاوہ کوچمان، گوچلوک اور کچھ منگول سردار بھی شامل تھے۔ یہ لشکر اس لشکر سے بڑا تھا جو پہلے لے کر خریم بن مخروم اپنی مہم پر نکلا تھا۔ اس لشکر میں صرف کرغیز، باشکیری اور مگیار تھے، لیکن اب ان تینوں قبائل کے علاوہ لشکر میں کافی منگول بھی شامل کر لیے گئے تھے۔ خریم بن مخروم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا، جہاں قازان سے پہلے دریائے وولگا بائیں طرف دریائے نیپر کی طرف ایک لمبا رخ کھاتا ہے۔ وہاں سے اس نے اپنا رخ بدلا، وہ بائیں جانب بڑھا۔ اب وہ اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو دریائے وولگا سے مشرق کی طرف آتی تھی۔ دریائے وولگا کو لکڑی کے پل کے ذریعے عبور کرنے کے بعد دریائے نیپر اور دریائے وولگا کے درمیان پڑنے والی سطح مرتفع کے بیچوں بیچ وہ شاہراہ سیدھی دریائے نیپر کے کنارے کیف شہر کی طرف جاتی تھی۔ ابھی اس نے اس سطح مرتفع کا لگ بھگ آدھا حصہ ہی طے کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے وہ ہرکارے نظر آئے جنہیں خریم بن مخروم کی روانگی سے بہت پہلے برقائی خان نے سلافوں پر نظر رکھنے کے لیے اور ان کی نقل و حرکت کی تفصیل خریم بن مخروم کو بتانے کے لیے پہلے سے روانہ کر دیا تھا۔ جب وہ ہرکارے گھنٹیاں بجاتے ہوئے قریب آئے تب اپنے لشکر کو خریم بن مخروم نے مخصوص اشارہ کیا، جس پر لشکر رک گیا۔ لشکر کے آگے خریم بن مخروم، عمیر بن نصر، کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان اور کچھ دوسرے منگول سردار بھی تھے۔ ہرکارے قریب آ کر رکے۔ سب سے پہلے انہوں نے مصافحہ کیا، پھر ان کا جو سرکردہ تھا وہ خریم بن مخروم کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن مخروم، سلافوں کو آپ کے کوچ اور حملہ آور ہونے کی خبر ہو چکی ہے۔ لگتا ہے آپ پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ سلافوں کا سردار سکتور دریائے دیاتکا کے کنارے آپ کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد کیف گیا۔ آپ جانتے ہیں کیف اور اس کے گرد و نواح میں سلاف ہی سلاف آباد ہیں۔ ان سب نے سکتور کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور اب سکتور کی کمانداری میں ایک بہت بڑا لشکر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہے۔ اس سے پہلے کالمکوں، جنگاریوں اور سلافوں کے جس متحدہ لشکر سے آپ کا پالا پڑا تھا، سلافوں کا یہ لشکر تعداد میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سلافوں کے کارکن آپ کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سے نمٹنے کے لیے اس بار انہوں نے ایک نیا لاہ عمل تیار کیا ہے۔ انہوں نے 2 بڑے بڑے لشکر تیار کیے ہیں۔ ایک لشکر کیف شہر کے شمال میں آپ کا منتظر ہے، دوسرا لشکر اس شہرہ پر گھات لگائے ہوئے ہے جو دریائے نیپر کے کنارے کنارے مختلف سمتوں میں بل کھاتی ہوئی ولادی میر کی طرف جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہ لشکر ٹکرائے گا جس نے کیف شہر کے شمال میں اپنے آپ کو استوار کر رکھا ہے۔ اس میں خانہ بدوش سلافوں کا سردار سکتور ہے جس سے آپ کو انتقام لینا ہے۔ جب آپ سلافوں کے اس لشکر سے ٹکرائیں گے تو گھات میں بیٹھا سلافوں کا وہ لشکر جو تعداد میں پہلے لشکر جتنا ہے وہ اپنی گھات سے نکلے گا اور دریائے نیپر کے کنارے کنارے بڑی برق رفتاری سے جنوب کی سمت آئے گا اور پشت کی جانب سے آپ پر حملہ آور ہو کر سلافوں کی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والے منگول ہرکاروں کا وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب کچھ خاموش اپنے گھوڑے پر بیٹھا خریم بن مخروم گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ پھر باری باری اس نے عمیر بن نصر، گوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان اور دیگر سالاروں کی طرف دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، سلافوں سے نمٹنے کے لیے جو لاہ عمل میرے ذہن میں آتا ہے اس کے تحت لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ جس میں زیادہ تر منگول ہوں گے کشلی خان اور تورائی خان کی سرکردگی میں کام کرے گا اور یہ سلافوں کے اس لشکر سے نمٹے گا جو دریائے نیپر کے کنارے کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لگائے ہوئے ہے۔ دوسرا لشکر کوچمان اور گوچلوک کی سرکردگی میں رہے گا اور تیسرا لشکر میرے اور عمیر کی کمانداری میں ہوگا۔ اب اس سے آگے کا جو لاہ عمل حرکت میں آئے گا وہ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے دریائے نیپر کے کنارے کنارے تورائی خان اور کشلی خان اس سمت آگے بڑھیں گے جس سمت سلافوں کے کسی لشکر نے گھات لگا رکھی ہے اور ان علاقوں سے آنے والے کچھ ہرکارے ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ ان سلافوں سے ٹکرائیں گے اور میرے خیال میں یہ ان کو بڑی آسانی سے شکست دے دیں گے، اس لیے کہ سلاف کسی بھی صورت میں منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت تک میں، عمیر بن نصر، کوچمان اور گوچلوک کیف شہر کے شمال میں سلافوں کے دوسرے حصے کے ساتھ ٹکرا چکے ہوں گے۔
अब तुराई खान और कशली खान के हाथों शिकस्त खाने के बाद दरियाए नेपर के किनारे किनारे सलाफों का वो लश्कर जुनूब की तरफ भागेगा, ताकि दूसरे हिस्से के साथ अगर हम टकरा चुके हैं तो हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर हो। उनकी इस यलगार से बचने के लिए वो लश्कर हरकत में आएगा जो गोचमान और गोचलोक की सरकर्दगी में काम कर रहा होगा। कोचमान और गोचलोक दोनों अपने लश्कर को लेकर पिछली समत रहेंगे। जब घात लगाने वाले सलाफ कशली खान और तुराई खान के आगे आगे भागते हुए आएंगे, तब कोचमान और गोचलोक के तहत जो लश्कर होगा ये फौरन अपना रुख बदलेगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मेरा साथ देने की बजाय पलटकर ये भागकर आने वाले सलाफों पर हमलावर हो जाएगा। इस तरह सामने की तरफ से कोचमान और गोचलोक और पुश्त की तरफ से तुराई खान और कशली खान सलाफों के उस लश्कर पर हमलावर होंगे तो मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर उसे कुचल देंगे। इतनी देर तक मैं कीफ शहर के शिमाल में सलाफों के दूसरे लश्कर को अपने साथ उलझाए रखूंगा और दिफा तक ही महदूद रहूंगा, जारहियत इख्तियार नहीं करूंगा। दूसरे हिस्से को बर्बाद करने के बाद कोचमान, गोचलोक, तुराई खान, कशली खान मेरे हिस्से से आन मिलेंगे और पूरे लश्कर के साथ फिर हम सलाफों को ज़रब लगाएंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द सलाफों से निमटने और खाना बदोश सलाफ सरदार सक्तूर को गिरफ्तार करने के बाद उसे कड़ी सजा देते हुए हम आगे यूरोप के उन बागियों का रुख करेंगे जिन लोगों ने मंगोलों को खिराज देने से इनकार कर दिया है। जब तक हरीम बिन मखरूम बोलता रहा, सब लोग खामोशी से उसे सुनते रहे। जब वो खामोश हुआ तब कोचमान ने उसे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, हरीम बिन मखरूम मेरे बेटे, जो कुछ तुमने कहा है मैं समझता हूँ अगर हम इस पर दयानतदारी से अमल करने में कामयाब हो गए तो सलाफों को हम नीस्तो नाबूद करके रख देंगे। बाकी सालारों ने भी हरीम बिन मखरूम की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। इसके बाद वहीं खड़े खड़े हरीम बिन मखरूम मजीद कुछ कहना चाहता था कि जो हरकारे सलाफों पर निगाह रखने के बाद लौटे थे उनका सरकर्दा फिर हरीम बिन मखरूम को मुखातिब करते हुए बोल उठा, इब्ने मखरूम, मैं एक दुश्वारी से आपको आगाह करना भूल गया। वो बात अब मेरे जहन में आई है। वो कुछ इस तरह है कि दरियाए नेपर के किनारे किनारे कीफ से जो शाहरा व्लादिमीर की तरफ जाती है, सलाफों के लश्कर ने वहां एक अजीबो गरीब घात लगा रखी है और वहां शबखू नहीं मारा जा सकता। हरीम बिन मखरूम ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, जरा उनकी घात का महल्ले वकू तो मुझसे कहो, इसके बाद मैं अपने रद्द अमल का इजहार करूंगा। इस पर हरकारों का सरखेल फिर कह रहा था, इब्ने मखरूम, मामला कुछ यूं है कि दरिया नेपर के बाएं किनारे से जरा हट के एक दर्रा वसी और खुली वादियों के अंदर उतरता है। ये वादियां इतनी वसी भी नहीं कि कोहिस्तानी सिलसिले से ऊपर बैठा हुआ शख्स दर्रे से दाखिल होने वालों की नकलो हरकत पर निगाह ना रख सके। ये वादियां चारों तरफ से बुलंद कोहिस्तानी सिलसिलों में घिरी हुई हैं। दरिया नेपर की तरफ से जो दर्रा उन वादियों की तरफ जाता है वो नीचे है। वादियां काफ़ी ऊंची हैं। चारों तरफ जो कोहिस्तानी सिलसिले हैं, बारिशों के मौसमों में इनका सारा पानी इन वादियों में दाखिल हो जाता है और इन वादियों से निकलकर फिर दर्रे के जरिए दरिया नेपर में गिरता है। सलाफों के जिस लश्कर ने वहां घात लगा रखी है, उन्होंने अपने खैमे नीचे वादी में कोहिस्तानी दामन में नस्ब करा रखे हैं, लेकिन खुद वो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात लगाए हुए हैं। ऐसा वो इस एहतियात के तहत कर रहे हैं कि अगर मंगोलों का कोई दस्ता तकसीम होकर एक कीफ की तरफ और एक उनकी तरफ बढ़ता है, तब वो ऊपर से पत्थर गिराते हुए और तीरों की बारिश करते हुए उन पर हमलावर हो जाएंगे और उन्हें मार भगाएंगे। लिहाजा तुराई खान और कशली खान जो लश्कर के एक हिस्से के साथ उनका रुख करेंगे तो उन्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। दर्रे के जरिए वादी में दाखिल होकर उन पर शबखू मारने की बजाय उनसे निमटने के लिए कोई और ही लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा, वरना तुराई खान और कशली खान को वो नुकसान पहुंचाएंगे। हरकारों का वो सरखेल जब खामोश हुआ तो थोड़ी देर तक हरीम बिन मखरूम गहरी सोचों में डूबा रहा। इस मौके पर उमैर बिन नसर, तुराई खान, कशली खान, कोचमान, गोचलोक और दूसरे सब सालार बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपनी गर्दन सीधी की। उस लम्हे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर कशली खान और तुराई खान की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, कशली खान और तुराई खान मेरे दोनों भाइयों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम होगा। एक मेरे पास, दूसरा कोचमान और कोचलोक के पास, तीसरा तुम दोनों भाइयों के पास होगा। दुश्मन के जिस लश्कर की तरफ तुमने रुख करना है, इसके महल्ले वकू के मुतालिक तुम सुन भी चुके हो, मैंने भी सुन लिया है। अब जो महल्ले वकू हमारे इन मुखबिरों ने बताया है, इसके मुताबिक दर्रे के जरिए इन वादियों में दाखिल होना खुद को अपने लिए मौत को दावत देना है। तुम दोनों भाई ऐसा नहीं करोगे। ये जो हरकारे हैं, इनमें से ज्यादा तुम अपने साथ ले जाना, इसलिए कि ये इन इलाकों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। मेरे भाई, दरिया नेपर के किनारे जिस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर सलाफों के दूसरे लश्कर ने घात लगा रखी है,
तुम इससे 2 मील पहले ही यानी कीव की तरफ दरिया नेपर के किनारे कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर घात लगा लेना। मैं चूंकि पहले इन इलाकों की तरफ आ चुका हूँ, इसलिए ये सारे इलाके मेरे देखे भाले हैं। इस शाहरा को भी मैं जानता हूँ जो कीव की तरफ से व्लादिमीर की तरफ जाती है। ये सीधी दरिया नेपर के किनारे किनारे जाती है और फिर बाएं जानिब रुख बदलकर इंतहाई मगरिब की तरफ चली जाती है। इसके बाद मगरबी समत की तरफ से ही मॉस्को के ऊपर चक्कर लगाकर व्लादिमीर की तरफ चली जाती है। अब तुम लोगों ने दुश्मनों की घात की जगह से लगभग 2 मील पहले ही कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ जाना है। कशली खान और तुराई मेरे भाइयों, अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करना। एक हिस्से का अपने किसी सालार को कमांडर मुकर्रर करना, बाकी दोनों हिस्से तुम्हारे पास रहेंगे। लश्कर का जो हिस्सा छोटे सालार की सरकर्दगी में होगा वो सबसे शिमाली तरफ रहेगा। उनके जिम्मे सिर्फ ये काम होगा कि जो ही सलाफों का लश्कर दरिया नेपर के किनारे किनारे शाहरा पर उनके पास से गुजरे तो वो उन पर पत्थरों की बारिश कर दें। बारिश उस वक्त शुरू होगी जब सलाफों का काफी हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, यानी पुश्ती हिस्से पर पत्थरों की बारिश की जाएगी। दूसरा हिस्सा कशली खान तुम अपनी कमानदारी में रखना। उसे पत्थर बरसाने वाले हिस्से से जुनूब में उस्तवार करना और जो ही पत्थर खाने के बाद सलाफों के लश्कर में भगदड़ मचे, तुम ऐसा करना अपने हिस्से के लश्कर के साथ तेज और तुंद तीरंदाजी सलाफों पर करना। इस तरह पत्थरों और तीरों के बरसने से सलाफों का बेपना नुकसान होगा और वो जुनूब की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। अब उस लश्कर की कार्रवाई शुरू होगी जो तुराई खान के हिस्से का होगा और तुम दोनों के लश्करियों के जुनूब में होगा। इस मौके पर अपने उस हिस्से के साथ तुराई खान कोहिस्तानी सिलसिले से एकदम नीचे उतरकर सलाफों पर टूट पड़ेगा। सलाफ घबराए हुए होंगे, अफरा तफरी के आलम में होंगे, इसलिए कि पत्थरों और तीरों की बारिश ने उनके हवास बाख्ता कर दिए होंगे। ऐसी सूरत में तुराई खान भी उन्हें खातिर खा नुकसान पहुंचाएगा। इतनी देर तक कशली खान, तुम और तुम्हारा छोटा सालार जिसके जिम्मे पत्थर बरसाना होगा, दोनों अपने लश्कर को लेकर कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतरना और पुश्त की जानिब से सलाफों पर हमलावर हो जाना। मेरे ख्याल में अगर तुम इस्लाह अमल पर पूरी तरह उतरने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि सलाफों का वो लश्कर तुम्हारे सामने ज्यादा देर निकाल नहीं सकेगा और उसमें इतनी सकत और हिम्मत नहीं रहेगी कि वो इस लश्कर की मदद के लिए आए जो कीव शहर से शिमाल की तरफ पड़ाव किए हुए है और वहां आकर हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होने की जुर्रत और जसारत कर सके। यहां तक कहने के बाद खरीम बिन मखरूम लम्हे भर के लिए रुका। इसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो कह रहा था, मेरे दोनों अजीज भाइयों, इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ने के बाद पूरे लश्कर ने जो सबसे पहला काम करना है कि जहां तुमने घात लगानी है इसके शिमाली हिस्से में सारे लश्कर ने मिलकर बेशुमार छोटे बड़े पत्थर जमा कर लेने हैं और पत्थर जहां जमा करने हैं वो बिल्कुल सड़क के किनारे जो कोहिस्तानी सिलसिला है उसके किनारे के ऊपर हों, ताकि किसी लश्करी को अपने हाथों से उठाकर पत्थर न बरसाना पड़े, बल्कि कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर ही ढेर लगे हों। अब उन्हें नीचे लुढ़का देना। इस तरह पत्थरों की खौफनाक बारिश शुरू हो जाएगी। साथ ही लश्कर का वो हिस्सा जो दरमियान में रहेगा और जिसकी कमानदारी कशली खान करेगा, उन लश्करियों के पास भी तीरों के ढेर लगा देना ताकि वो बड़ी तेजी के साथ तीरंदाजी करें। इस तरह मेरे ख्याल में सलाफों के इस लश्कर को हम फना करने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब तुम में से अगर किसी ने कुछ कहना है तो कहे। किसी ने कुछ न कहा। सबने खरीम बिन मखरूम की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। इसके बाद खुशी का इजहार करते हुए खरीम बिन मखरूम फिर कह रहा था, तो फिर आओ अपने सफ़र को जारी रखें। खरीम बिन मखरूम के कहने पर लश्कर ने फिर पेशकदमी शुरू कर दी थी। दोनों लश्कर आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि आधी रात के करीब दोनों लश्कर अलहदा हुए। खरीम बिन मखरूम उमैर बिन नसर, कोचमान, गोचलोक लश्कर के 2 हिस्सों को लेकर कीव का रुख कर गए थे, जबकि कशली खान और तोराई खान शिमाल की तरफ चले गए थे। खरीम बिन मखरूम अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा और लकड़ी के उस पुल के जरिए दरिया नेपर को उबूर किया जो शाहराह पर बना हुआ था। फिर आगे बढ़कर कीव के शिमाल में जो सलाफों के लश्कर ने पड़ाव किया हुआ था उसके सामने उसने पड़ाव कर लिया। दूसरी जानिब कशली खान और तोराई खान दरिया नेपर के किनारे किनारे हरकारों की रहनुमाई में शिमाल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक जगह दरिया का घाट तंग था, वहां हरकारों के कहने पर कशली खान और तोराई खान दोनों ने अपने लश्कर के साथ दरिया नेपर को उबूर कर लिया था। फिर हरकारों की रहनुमाई में उन्होंने दरिया नेपर के किनारे कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़कर घात लगा ली थी। पत्थरों और तीरों के ढेर लगाकर उन्होंने अपनी कार्रवाई की तकमील सुबह से पहले ही कर ली थी। अगले रोज कीव शहर के शिमाल में दोनों लश्करियों के अंदर एक हलचल सी मच गई थी। ताहम किसी भी लश्कर में जंग की इब्तदा करने के लिए अभी तक जंग के तिबल नहीं बजे थे। वो रात खरीम बिन मखरूम के पूरे लश्कर ने चौकन्ने रहते हुए गुजार दी थी, इसलिए कि उन्हें खतरा था कि कहीं सलाफ उन पर शबखों मारने की कोशिश न करें। अगले रोज की सुबह ही सुबह खरीम बिन मखरूम अपने सालारों के साथ हरकत में आया।
लश्करगाह से पीछे उसने अपने पड़ाव की तरतीब दुरुस्त करना शुरू की। लश्कर के अंदर जिस कदर छकड़े और छकड़ों के अंदर यूरत थे, उन सबको एक गोल दायरे की सूरत में खड़ा कर दिया गया। इस काम में लश्कर में शामिल सब मर्द औरतें बुरी तरह मसरूफ थे। जब सारे छकड़े और यूरत गोल दायरे की शक्ल में खड़े किए जा चुके, तब खरीम बिन मखरूम ने बशार, थिमर और नक्सार तीनों को एक जगह जमा किया। फिर बशार को मुखातिब करके कहने लगा, बशार, तुम पहले ये काम करो कि लश्कर के अंदर जिस कदर औरतें हैं, बूढ़ी नहीं सिर्फ जवान, उन सबको यहाँ छकड़ों के बीच में मेरे पास लाओ। वक्त ज़ाय नहीं करना, जल्दी जल्दी उन्हें इकट्ठा करो। इस पर बशार, नक्सार और थिमर तीनों भागती हुई हरकत में आईं और लश्कर के अंदर जिस कदर औरतें थीं, उन सबको छकड़ों के बीच में जो गोल दायरा बनाया गया था उसमें जमा कर दिया गया था। उन औरतों की तादाद खासी थी, इसलिए कि लश्कर का वो हिस्सा जो तोराई खान और कचली खान ले गए थे, उनमें किसी औरत को नहीं रखा गया था। सारी औरतें खरीम बिन मखरूम के हिस्से के लश्कर में ही रही थीं। जब सारी औरतें छक्कड़ों से बनाए गए उस गोल दायरे के अंदर जमा हो गईं, तब खरीम बिन मखरूम और उमैर बिन नसर दोनों बशार, थिमर और नक्सार के करीब आए। उसके पीछे पीछे कोचमान और गोचलोक भी थे। कुछ दीगर छोटे सालार भी पीछे खड़े थे। फिर इन तीनों को मुखातिब करते हुए खरीम बिन मखरूम कह रहा था, आज पहली बार मैं तुम तीनों के जिम्मे एक इंतहाई अहम काम लगा रहा हूँ। बशार, मैं तुम्हारे मुतालिक तो जानता हूँ कि तुम बेहतरीन तीरंदाजी कर सकती हो, तेवज़नी के हुनर में भी माहिर हो। जहाँ तक मेरी दोनों बहनों थिमर और नक्सार का ताल्लुक़ है, तो इनसे मुतालिक यहाँ तक कहते कहते खरीम बिन मखरूम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उमैर बिन नसर आगे बढ़ा और बड़े प्यारे अंदाज में अपना हाथ खरीम बिन मखरूम के शाने पर रखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़ो मोहतरम भाई, इनसे मुतालिक मैं बताता हूँ। ये दोनों बेहतरीन तीरंदाजी कर सकती हैं और उम्दा किस्म की तेवज़न भी हैं। अब आप इन तीनों के लिए हुक्म जारी करें कि क्या करना है। खरीम बिन मखरूम मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ये जो छकड़ों के गोल दायरों के अंदर औरतें खड़ी हैं, ये इससे पहले लश्कर में रहती रही हैं, जंगों का तजुर्बा भी रखती हैं। बशार, तुम थिमर और नक्सार यूं जानो तुम तीनों इनकी कमानदार हो। छकड़ों के अंदर तीरों के ढेर लगा दिए जाएंगे। एक एक छकड़े के अंदर औरतें तकसीम करके बिठा दी जाएंगी। अगर दुश्मन के लश्कर का कोई हिस्सा इस तरफ आता है, तो इन औरतों का काम यह होगा कि इधर आने वाले दुश्मन के लश्करियों को तीरों से छलनी करके रख दें। अगर तुम सब औरतें मिलकर ये काम कर लो तो मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी, इसलिए कि मुझे अपने लश्कर में से कुछ दस्ते निकालकर पड़ाव की हिफाजत के लिए नहीं छोड़ने पड़ेंगे, और मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ सलाफों पर ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि जंग को तूल नहीं पकड़ने दूंगा। अभी हमारे ज़िम्मे बहुत काम है। इस जंग से निमटने के बाद हमने मज़ीद मगरिब का रुख करना है। मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि तोराई खान और कशली खान भी दुश्मन के दूसरे हिस्से से खूब निमटेंगे, और दुश्मन के लश्कर का वो हिस्सा मुझे उम्मीद है कि इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो पुश्त की जानिब से हम पर हमला आवर हो। अब तुम ऐसा करो, तीनों मिलकर छक्कड़ों के अंदर औरतों की तकसीम करो। सिर्फ ऐसी औरतों को इस काम पर लगाना जो तीरंदाजी में माहिर हों। छक्कड़ों के अंदर मैं तीर रखने का एहतमाम करवाता हूँ। खरीम बिन मखरूम जब खामोश हुआ, तब मुस्कुराते हुए बशार कहने लगी, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें। दुश्मन के लश्कर का कोई हिस्सा अगर इस तरफ आया और उसने हमारे पड़ाव को नुकसान पहुंचाना चाहा, पड़ाव में दाखिल होना चाहा, तो हम सब मिलकर उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे, किसी को यहाँ आने नहीं देंगी। बशार के इन अल्फाज पर खरीम खुश हो गया था। कहने लगा, बशार, तुम देखती हो कि हमने जो छक्कड़ों का हिसार बनाया है, ये दोहरा हिसार है। बाहर वाले छक्कड़े खाली हैं, इनके अंदर ही तीरंदाजी के लिए औरतें बिठाई जाएंगी, और जो छक्कड़ों का अंदरूनी हिसार है, इसमें हमारी खुराक, हथियारों के ज़खायर के अलावा ज़रूरियात का दीगर सामान है, इसकी भी हिफाजत करनी है। खरीम बिन मखरूम के खामोश होने पर बशार बोल उठी, अमीर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस कदर लश्कर में औरतें हैं, ये ऐसी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी कि जो उम्मीदें आपने वाबस्ता की हैं, मेरे खुदावंद ने चाहा तो इनसे बेहतर बन के हम साबित होंगी। बशार की इस गुफ्तगू से खरीम बिन मखरूम, उमैर, कोचमान और गोचलोक मुतमईन हो गए थे। फिर खरीम पीछे हटा, करगैज़ों के सरदार कोचमान के पास आया, उसके शाने पर हाथ रखा, उसे थोड़ा सा आगे लाया, फिर कहने लगा, मोहतरम कोचलोक, मैं गुज़श्ता कई दिनों से एक बात आपसे कहने का तहिया कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज सबके सामने मैं एक फ़ैसला करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई उमैर भी इस फैसले से इत्तफाक करेगा। खरीम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उमैर बिन नसर फ़ौरन बोल पड़ा, मेरे भाई, आपके फ़ैसले से इत्तफाक न करना मैं गुनाह समझता हूँ। आप कहें क्या कहना चाहते हैं। खरीम बिन मखरूम मुस्कुराया, फिर वो गोचलोक को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे मोहतरम, जहाँ मुझे अपने भाई कुरैज़ के मरने का बेहद दुख है, वहाँ अपनी बहन ताइसी की मौत भी मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं जानता हूँ ताइसी आपकी इकलौती बेटी थी और आप उसकी कमी महसूस करते हैं, परेशान और फिक्रमंद रहते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरह मेरे मोहतरम कोचमान ने वसीयत कर दी है, इसके बाद बाशकीरियों का भी सरदार हूँगा। इस तरह आपने कुरैज़ के लिए वसीयत कर दी थी
कि आपके बाद कुरैज करगेजियों का सरदार होगा।